आज की एपिसोड में जो मेरे गेस्ट हैं, he is also a renowned businessman, a singer, a philanthropist and an आशिक. This is success. Every day you get to be successful. मुझे बड़े गोल से डर नहीं लगता, ना मैं इंटिमिडेट होता. मुझे रोज के सक्सेसेस मिलते हैं तो उसमें मुझे ज्यादा मजा आता है. You have an upper hand, no? Because born in a Mayman family, आप लोगों की बचपन से ट्रेनिंग होती है बिजनेस करने की. From the age of maybe 5 or 6 हमें मैथ और लॉजिक सिखाया जाता है. वो मैथ और लॉजिक के बाद वो my father would be like, he would ask a question, he'd be like, it's snap. He'd be doing 1, 2 और तीसरे में पहुंच नहीं सकता. क्या हुआ कि आपने सोचा कि अब मैं अपने गाने निकालूं? I mean, at the age of 18, I recorded the first song, तड़पावना. वीडियो बनाने के बाद अब वो मेमन लोग हैं, बोले कि बिजनेस करो, ज़्यादा बेहतर है, तो मुझे उन्होंने मना कर दिया. So I was a bit, heartbroken, to be honest. Will you be entering politics at any point in your life, do you think? अगर जो मैं पॉलिसी सोच रहा हूँ कर रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं तो मुझे ज़रूरी नहीं है मुझे पॉलिटिक्स में. माय फादर ऑल्सो सर कि हम तुम कभी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते, पर पता है ना. और भी मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ, नियत करी हुई है कि पूरे पाकिस्तान को पानी, साफ पानी देना है, तो वहाँ तक पहुँच जाएगा. Hello everyone, welcome to Speakeasy. I'm your host Aisha Umar and you're watching 365 News. आज की एपिसोड में जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं and he's also a renowned businessman, a singer, a philanthropist and an आशिक. He belongs to a business family, Ismail Industries, और 10 साल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे Ismail Industries के, CEO रहे बिस्कानी के, and now he's the CEO of his own company, Ismail Global. Very recently he launched his own water called Waterverse. पूरे कराची में उनका पानी अब डिलीवर हो रहा है, मैं खुद उनका पानी पी रही हूँ. It is very affordable, clean drinking water. 3 गाने उनके आ चुके हैं and his last video that's just come out is an absolute pleasure to watch. So I decided कि आज आपको उनसे मिलवाते हैं. Let's go. And we are seated with Hamid in his lounge/conference room, which is really cool. Hello, Hamid. Hi Aisha, how are you doing? Good. How are you? Fantastic. How are you feeling after the launch of your 3rd music video? I'm really excited, to be honest, and this is something new for me. I did a duet. I went to Turkey for video shoot, and it was just, it just feels really good. It's like there's something new this time. First of all, Hamid, when I first met you, when I met you for the second time, आज आपके लिए success क्या है? After successfully launching your own company, oh my God, and successfully launching your water project, which has been so dear to you, and then 3 songs. So like you've done it all on your own. Yeah. उस बात को 1.5 साल हो गया है. अब बताओ success क्या है आज? तो मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ. So first maybe 10 years of my career, success was all about bigger empires, wealth, and all of that. But then after that, when last couple of years, everything changed. It was more about being content and being happy and actually doing good for the world. Nice. Good for Pakistan, and that's what actually Ismail Global is. It's business with a cause. And when will you think that you are successful? क्या होगा जिंदगी में, क्या मिल जाएगा कि आप कहेंगे अब मैं successful हो गया? I mean, अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके लिए मैं कह सकता हूँ कि मैं इस गोल के बाद मैं I'm successfल. क्यों? कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगे अभी के लिए मैं successful हो गया? देखिए I'll tell you something interesting. It's almost like every single time I do something, जैसे मैं कल गया एक राशन बांटने के लिए या कुछ, तो that itself is success for me also, because I see all these people being happy and all. So every day is something which I if I'm doing something good, or if I'm achieving something, that's success for me. So वो बोलते हैं ना छोटी-छोटी खुशियाँ. I like that. This is success. Every day you get to be successful. Yeah. And that actually breaks it down and makes it easier to achieve goals instead के goal है जो पता नहीं कब reach होगा. मुझे बड़े गोल से डर नहीं लगता, ना मैं इंटिमिडेट होता हूँ, मगर मुझे मज़ा आता है कि जो मुझे रोज़ के सक्सेसेस मिलते हैं तो उसमें मुझे ज़्यादा मज़ा आता है. मगर obviously there is a bigger goal, but हर चीज़ कहीं नहीं जाती. And what is the biggest challenge of being a businessman in Pakistan for you? Ease of doing business. Ease of doing business. It's there is no ease of doing business. It's just lack of ease. But you have an upper hand, no? Because born in a Mayman family, आप लोगों की बचपन से ट्रेनिंग होती है बिजनेस करने. देखिए वो तो अलग एक चीज़ होती है. The training is different, but
since I have my own business now, it's I'm not using the same contacts or everything that I had when I was in the small industry. So I'm basically starting from scratch. I'm not, calling my father कि आप please मेरे ये कुछ करवा दें. So that's different. But obviously जो training मैं लेकर आया हूँ 15 साल की उम्र से from my father and my uncles, obviously वो I'm benefiting from that. It's a pro. It is. You think in numbers. अब एक दूसरे बच्चे जो हैं वो कैंडीज भी आप सोचते हैं. हाँ. पर देखिए मेमन होने का कोई ना कोई फायदा है. क्या फायदा है? कि 15 साल की उम्र से मैं ऑफिस जा रहा हूँ every summer, every winter, 9 o'clock in the morning. हमारे डिनर टेबल पे भी हमें वही ट्रेनिंग दी जाती है. मतलब क्या बातें होती हैं डिनर टेबल पे मेमन बिजनेस फैमिली? चल अगर ये मैं बताऊँ कि from the age of maybe 5 or 6 हमें मैथ और लॉजिक सिखाया जाता है. 5 or 6 math and logic. And the thing is, what my father would do is he would ask a question which would have some parts of math, some part of logic, and like he would what? snap a word problem, right, which would have a math in it, but it would also I would have to think about it. कि like मतलब अगर if a train is crossing by at these kilometers an hour and वो वहाँ तक पहुँचेगा तो उसमें apples कितने निकलेंगे? Something like that. Right? Are you doing the same with your son? I am trying to as much as I can. But then उसके बाद अगर वो मैथ एंड लॉजिक के बाद वो माय फादर वुड बी लाइक ही वुड आस्क अ क्वेश्चन ही वुड बी लाइक इट स्नैप यू डू 1 2 और तीसरे में पहुंच नहीं सकता. प्रेशर भी तीसरे पे जवाब टाइम का भी प्रेशर है, इंटेलेक्ट लेवल का भी वहां से शुरू होती है हमारी ट्रेनिंग, राइट. सो अब ये भी सवाल it would be asked कि हम लोग अगर दुबई जाएंगे फॉर एग्जांपल वी गो फॉर अ वेकेशन टू दुबई और समथिंग 10-12 की एज पे और वापस आएंगे तो पहले सवाल जब पहुंचेंगे हम लोग बात पूछेंगे बताओ दुबई कितना दूर है किलोमीटर्स में. Which means आप स्क्रीन पे आपको देखना और आपको याद मुझे लगा पूछेंगे कितने पैसे खर्च किए बताओ शॉपिंग में. तो एग्जैक्ट नंबर बताना. वो तो याद रखना जरूरी होता है. तो पहले से प्लानिंग होती है. तो हमें ये भी पूछा जाता है कितना दूर है तो हमें पता है कि माइल्स में कितना दूर होना चाहिए किलोमीटर में कितना बिकॉज इट क्रिएट्स लॉजिक इन योर हेड कि फिर आपको पता होना चाहिए कि एक जहाज कितना तेज जाता है तो आपको पता चलना चाहिए कितना दूर है और कितना फ्यूल यूज करता है. अब वो फ्यूल यूज करना और जब मेरा एक दिन प्राइवेट जेट होगा तो वो कितना फ्यूल यूज करेगा बट व्हाई नॉट होगा एक दिन. व्हाई नॉट. अच्छा सो मेमन फैमिलीज के बारे में ये भी कहा जाता है बिकॉज आई ग्रू अप विद माई मदर टेलिंग मी दैट यू नो व्हाट दे आर सुपर स्मार्ट दे आर सुपर डिसिप्लिन्ड लेकिन एक मिसकंसेप्शन है कि बड़े स्टिंजी होते हैं. इज दैट करेक्ट? The amount of money Maimans are making, उसका they spend a small percentage of that. So उसमें आप कह सकते हैं कि the stage, but Maimans are making a lot of money. But वो खर्च भी बहुत कर रहे हैं मगर वो छोटा percentage होता है as compared to other people like to spend. They have a bigger heart. So they save for the future. And that is how they make it legacy. Of course, अब मुझे भी यही सिखाया जा रहा है. I mean, my father now today is teaching me कि हामिद अपने बच्चों के लिए save करो. So I'm now spending less again and I'm saving for my children and I'm assuming my children will do that for their children. So सबके पास पैसे रहे. We don't want to be like हम सारे पैसे हम उड़ा दें अपनी जिंदगी में नहीं. हम अपने बच्चों के लिए सेव बच्चों के लिए सेव करो ये सिखाया जाता है. But that's a very smart way of living. Well, मजा भी आता है जब पैसे खर्च भी करे सच बताया तो. But it's a smart way of living but you're also missing out. Of having more fun in life. So how are you managing family and business and philanthropy? जिस पे बाद में आते हैं. How do you do that all together? Isn't it tough? Well, I don't think it's that tough if you know your priorities and you can manage time well. मैं इतनी जल्दी मैं नहीं कहता कि मैं थक जाता इतनी जल्दी कि अगर मैं 2 घंटे कहीं मैं कोई एक स्लम एरिया में कोई philanthropy कर भी रहा हूँ तो I can always come back and be around family also and I don't have a problem in the morning. बिजनेस भी कर सकता हूँ. तो ये एक थोड़ा सा आई एम लकी बट ऑब्वियसली वीकेंड पे जाकर थोड़ा क्रैश हो जाते हैं थोड़ा थक जाते हैं बट जनरली इट्स पॉसिबल. एंड वैसे भी आई डोंट बिलीव इन ये मैंने बात पहले भी की थी कि आई डोंट बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस. You don't I don't believe in work life. I believe in work life harmony, which means everywhere you are, you should be happy with where you are, and everyone should be happy with what you're giving. अब आप देखें कि अगर मैं if I'm going to if I'm working 16 hours one day, it's possible. नया business है ये वो. My family will understand कि Hamid is working 16 hours today. But then I will also make sure that the next day I'll maybe just work 4 hours and I'll spend all of the time with family. So you'll compensate. I'll compensate for it. अब work-life balance में क्या होता है कि you're actually doing it on a daily basis. कि आपको पता है आपको 6 बजे घर आना है और फिर family time spend कर. That's not what I do. Everyone around me also understands that luckily. Actually, Hamid, I don't know if you've seen my shows, but I like to talk to people about real stuff.
एंड ऑफ कोर्स काम की भी हम बात करते हैं, लेकिन आई डू नो दैट रिसेंटली यू गॉट डिवोर्स्ड. Yes. कैन वी स्पीक अबाउट इट? Of course. ओके, सो कितना टाइम हुआ है? लीगली डिवोर्स को 1.25 साल हो चुका है. ओके. मगर फॉर्मल सेपरेशन के बाद उसको 2.25 साल हो चुके हैं. अब डिवोर्स हुई है, अब आपका नया बिजनेस है, आपके 3 बच्चे हैं एंड योर को-पेरेंटिंग. Yes. So is that really tough? Because there are a lot of young couples out there, increasingly more now, who are separated or divorced, and उनके लिए co-parenting एक challenge है. So how is that for you, and what advice would you give to people? First, I'll co-parenting में मैं आता हूँ, मगर मैं आपको ये बताऊँ कि it's very very difficult to not see your kids every day, right? Because for years every day I would come home and I would see my kids. Regardless how tired I am or what, I would like to see my kids, right? And they bring you back to like. And I want to put them, अब मुझे याद है कि रोज मेरा बेटा है, he would sleep on my couch in my bedroom, and I would have a fight with him. You have to sleep in your room because he's old enough to. He should be sleeping in your room. And the thing is, after about half an hour fight, he would just be like, "I'm just going to sleep here. I don't care." And then I'm a father. Then I will get him a pillow and I will tuck him in on my couch and everything. And the thing is, all of this. When you think about all of this, then you miss it. So this was like a stress buster for you at the end of the day. Yeah. So you miss your stress busting. और वो लड़ाई भी याद आती है, So that's it. But the thing is, co-parenting is not easy. No. It's not at all, because up now you're not married anymore, so you're not really caring that much about each other, the two parents. So वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर अगर if there is a good equation, फिर बहुत अच्छा हो जाता है. क्या है good equation? देखिए, ऐसे नहीं हो सकता कि आप from first day आपकी डिवोर्स हुई और आपको पेरेंटिंग आप शुरू करें. आपको वर्क सीख रहे हैं आप. अब देखिए, इट्स नॉट द को-पेरेंटिंग जो आपको सीखना है, इट्स एक्चुअली बिल्डिंग ट्रस्ट विद वन ईच अदर. आपकी डिवोर्स क्यों हुई? अगर आपको में ट्रस्ट होता ही और एवरीथिंग वाज फाइन, तो कभी डिवोर्स ही नहीं होती. अब जब डिवोर्स हुई आपकी, तो यू हैव टू नाउ बिल्ड ट्रस्ट, और वो बिल्ड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मगर जब एक दफा हो जाए, so then co-parenting बहुत आसान हो जाता है. So to everyone who's getting divorced and who's worried about co-parenting, don't worry about co-parenting right now. Worry about building trust with each other to co-parent. That's better. Wow. But we all, think about what we would do differently with our children, right? मैंने सोचा है कि जब मेरे बच्चे होंगे इंशाल्लाह, तो मैं ये चीज़ करूँगी जो मेरी अम्मी आई विश करती, या उनके circumstances different थे. We're obviously all learning to forgive our parents for their mistakes and all. ये भी एक part of healing, and I know that you've been on your healing journey and I've been on my healing journey. But anything जो आप differently कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ? देखिए, like back in 30 years ago, पेरेंट्स को इतना समझ, साइकोलॉजी की इतनी समझ नहीं थी. बिल्कुल भी नहीं. तो अगर एक बच्चे को लगा दिया तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता था. मेरा एक उसूल है, फिजिकल, नॉट ओनली दैट, इवन वर्बल अब्यूज. बड़ी आवाज में मैं बात नहीं करता अपने बच्चों से, और मैंने अपने तीनों में से कभी भी बच्चे को कभी हाथ नहीं उठाया, बिकॉज अब हमें समझ आ गई है. एंड द थिंग इज, you always ask your parents also, your mother, and I asked my parents कि why did you slap us? उनको लगता था कि चपेड़ों के बगैर डिसिप्लिन नहीं हो सकता. मैं तो बहुत पढ़ी, मगर डिसिप्लिन के और भी तरीके, थोड़ा सा ज्यादा पेशेंस चाहिए होता है. मगर once you've achieved that, फिर वो आसान हो जाता है. अगर आप अब मारते रह गए किसी को, तो वो कभी भी डिसिप्लिन नहीं होगा. उसको पता है कि एक लग जाएगी, फिर आगे काम चल जाएगा. बट इफ यू टेक टाइम टू एक्चुअली डिसिप्लिन योर चिल्ड्रन विद पेशेंस, फिर ये फॉरएवर ऐसा चलता है. So do you think children should be scared of their parents? I think there should be respect involved, and I think also डर एक अलग चीज है. ठीक है, डर का मतलब क्या होता है कि कुछ कर जाएगा कोई, वो डर नहीं होना चाहिए. पर वो डर ये होना चाहिए कि मैं कुछ गलत करता तो our parents might be disappointed, और वो टॉक टू हम कि क्या, एक ये डर होना चाहिए. ये कभी डर नहीं होना चाहिए कि फिजिकल डर हो आपको, या फिर एक आपको लगे कि कुछ हो सकता है. मुझे तो लगता है डिसअपॉइंटमेंट वाला डर भी नहीं होना चाहिए. मुझे तो लगता है बिल्कुल अनकंडीशनल होना चाहिए कि this person will be there for me whatever I do. वो तो regardless है. अब I'll tell you a difference. Like, so my son is not a straight A student, right? He gets B's and in A in math. वो तो जरूरी है मेमनों के लिए. तो Kat, were you a straight A student? I was not a straight A student, but straight A's in math throughout. मेमनों का जो उसूल है ये हमारा, हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे ना, तो हमें मेमनों से निकाला जाएगा. ये भी. But you were a good student. I was a good student. Okay. Decent student. Back to your son. अच्छा, third video and song आपका launch हो चुका है, and I really want to talk about that, but we have to take a little break. So take a break and we'll be right back.
वेलकम बैक टू स्पीक इजी। मैं हूँ आयशा उमर और आज मेरे गेस्ट हैं हामिद इस्माइल, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इस्माइल ग्लोबल के सीईओ हैं। तीसरा गाना अपना रिलीज कर चुके हैं विद अ वीडियो and he's also launched his water, which is being supplied all over Karachi at the moment. Other cities as well? Karachi right now. Karachi right now. Acha Hamid, before the break we were talking about, we were starting to speak about your music. ये सिंगर बनने का शौक बचपन से था, ये कीड़ा बचपन से था, ये रिसेंट डेवलपमेंट है, क्या है? ये एक्चुअली बचपन से था, फ्रॉम द एज ऑफ 15. Okay. I just wanted to be a singer, मगर मैं आपको सच बताऊं, मुझे गाना नहीं आता था. When I wanted to be a singer, I just wanted to be a singer. Why? Who inspired? अब इंस्पिरेशन कुछ और थी. वो 15 साल के एक बच्चे की सोच थी, तो मैं बताता हूँ. वो उस वक्त तो गाने अलग थे, बट मैं एक्चुअली बताऊं कि what actually happened. कि मैं स्कूल पे लास्ट डे ऑफ स्कूल था, मैं घर आया थका हुआ था, सो गया. और मेरा मुझे एक I had a dream. I woke up and I ran to my parents and I said I had a dream. And it's like, what was the dream? And I'm like, मैं स्टेज पे हूँ, मेरे हाथ में गिटार है, मुझे गिटार भी नहीं बजाना आता था उस वक्त. मेरे हाथ में गिटार है, मैं गाना गा रहा हूँ और पूरे ऑडियंस में सब हामिद हामिद चीख रहे हैं. Wow. और I'm like, and I told my father, I want to be a singer. फिर उस दिन से मैंने रोज 3 घंटे बस गाना गाया, खुद गिटार बजाता था, गिटार सीखा, साथ सीखा और गाना गाया और रिकॉर्ड करता था अपने आप को. और 6 महीने तक रोज 3 घंटे गाना गाया. And from the complete basura that I was at that point to, well, somewhat in sur in 6 months. Practice makes perfect. और मैं 6 महीने में मैं गाना आना इतना मैं सीख गया था कि मैं गा सकता था. और उसी टाइम में मैंने अपना पहला गाना भी लिख लिया था, जो which was तड़पावना. At 15? At 15 I wrote तड़पावना. Wow. And your first song? My first song. No, first is Pia. Yeah, first was Pia. I launched Pia first, but Tadpavna was the first song that I wrote. Was the first song you ever wrote? किसके लिए लिखा था ये? इतना दर्द पर 15 साल की उम्र पे कैसे आ गया अंदर? तो आशिक आदमी हूँ. नहीं, आशिक देखिए, I mean there are different आशिक्स for different reasons, right? एक तो होता है कि आपको अपने मुल्क से प्यार है, वो भी आशिक होता है, एक सूफी टाइप होता है एक आदमी. और एक होता है आशिक जो, अगर रोमांटिक आशिक की बात करें तो रोमांटिक आशिक वो मैं हूँ जिसके अगर जिससे मुझे इश्क है, फिर उसके सिवा कुछ नहीं, कोई नहीं है, वो आशिक है. So like that. The world is turning away from that kind of इश्क तो. मगर मेरे लिए वो किसी के लिए नहीं मरना, नहीं अपने लिए मरना है. नहीं, वो मरने की बात नहीं कर रहा, वो बात नहीं. मगर अगर किसी से इश्क है तो और किसी से इश्क नहीं है, उसी से इश्क है. Like that वो आशिक है. अच्छा, तो अब क्या हुआ कि आपने सोचा कि अब मैं अपने गाने निकालूं? I mean, at the age of 18, I recorded the first song, तड़पावना, right? और फिर मैंने वीडियो भी actually बनाई थी उस टाइम पे. तो और मगर obviously, you know, family ने बोला कि हाँ, we don't want you to be going on TV and as a musician. हाँ, तो वो वीडियो बनाने के बाद अब वो मेमन लोग हैं, बोले कि बिजनेस करो, ज़्यादा बेहतर है. You know, don't go towards this, go towards business. Okay. तो मुझे उन्होंने मना कर दिया वीडियो पर. So I was a bit, you know, heartbroken to be honest. कि वो वीडियो बनाकर इतनी मेहनत करके और कर दिया. And it was actually very exciting also. I called the whole family and मैंने उनको वीडियो दिखाई. सबने बड़ी तारीफ करी. उन्होंने बोला कि बस बेटा. फिर उसके बाद, you know, then I still kept trying कि, you know, कुछ हो कि मैं कुछ हर साल में थोड़ा सा. हाँ, हर साल. But I think by the age of 24, 25, I was just like, maybe, you know what, this is it. So did she encourage your singing? Not particularly. Obviously, उनको सुनने में मजा आता था, but she was also towards, you know, let's go towards business and not towards. But हाँ, अब the thing is, यही होता है. But अब देखिए, there is a difference. Maybe it was better for me also, you know, क्योंकि मैं जो business में गया and what I've learned all of this. मैं अपनी कंपनी खोली मैंने, you know, स्माइल इंडस्ट्री से हट के अपनी कंपनी खोली. So I'm actually thankful to my family and to my ex-wife कि, you know, this was the decision for me, because today not I can do business also and I can do philanthropy also and I can actually sing as well. So and you can make the best videos that you want wherever you want. Yes, and so I'm actually happy that this happened to me. I'm very grateful. And top 3 favorite Pakistani singers. Come on. I mean, I would say apart from yourself. I would say Atif Aslam. I would say Raat Fateh Ali Khan, and my third one would be. I know who it is. Aisha Umar. No, इतनी वे नहीं मैं. Javed Bashir. Of course, Javed Bashir. Of course. He's brilliant in your latest song. Do you know that he also sang in my wedding
17, 18 years ago. Yeah. ओके आपकी जो फैमिली कंपनी है स्माइल इंडस्ट्रीज दे हैव बीन मेकिंग कैंडीज एंड यू गाइस हैव बीन मेकिंग बिस्किट्स आप खुद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं बिस्कॉनी के मैं CEO for रह चुका 10 हूँ. years? CEO. अच्छा हमारे पास जो बायो आई थी उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर Executive Director of Smile Industries एंड and सीईओ CEO of बिस्कॉनी Bisconi. सो कोकोमो जो पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर बिस्किट है उसको आपने इवॉल्व कराया और उसमें चॉकलेट ज्यादा हुई है ना बहुत ज्यादा बहुत chocolate, ज्यादा बहुत हुई ज्यादा हुआ. खैर मैं तो नहीं खाती हाँ, मुझे हाँ. क्या पता हाँ. मैं नहीं खाती मगर आप अगर सबसे सुनेंगे तो कहेंगे कि नहीं हुई, लेकिन- मगर मैं आपको गारंटी कर सकता हूँ बहुत ज्यादा चॉकलेट. बहुत ज्यादा चॉकलेट अच्छा ग्रेट पानी एक ऐसी चीज है जो आई मीन बेसिक नेसेसिटी है लोगों की और हमारे मुल्क में बहुत सारी कंपनीज हैं जो पानी बना रही हैं व्हाई वाटर व्हाट हैपेंड I'll tell you this. देखिए मैं कुछ साल पहले आई थिंक 5-6 साल हो चुके हैं मैं कोरंगी में था एंड आई सॉ दिस किड ड्रिंकिंग डर्टी वाटर लाइक खारा वाटर बट डर्टी वाटर एंड उनके लिए तो नॉर्मल था क्योंकि वो पी लेते उनकी इम्यूनिटी भी है मगर फिर भी ऑब्वियसली एज अ फादर मैंने सोचा कि व्हाट डज हिज फादर फील अबाउट दिस यू नो क्योंकि मैं अपने बच्चों को मेरा काम क्या एज अ फादर प्रोटेक्ट माई चिल्ड्रन ऑलवेज पॉसिबल अब उसके जो बाप ने क्या सोचा होगा कि मैं प्रोवाइड ही नहीं कर सक रहा हूँ तो मैं अपने बेटे को यही दे रहा हूँ वो नहीं ये फील कर रहा है वो थोड़ा सा मजबूर है you तो know? क्या क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है ही नहीं पाकिस्तान लाइक कराची में या ये माफिया है या क्या है इज देयर डू वी हैव क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अगर हम किसी बोरिंग का पानी लें इट्स नॉट क्लीन नहीं देखिए बोरिंग का पानी तो it's got a lot of salt in Salt in it it, right in so Karachi, yeah. वो तो आप पी वो नहीं तो सकता पता है। वो आप पी नहीं सकते there is clean drinking water in Pakistan you can पंजाब in में तो हम Karachi पीते हैं नहीं- tap water boil नहीं, वो करके। tap water boil करके नहीं पीना चाहिए सो यू आर सेइंग कि लाहौर में भी अगर आप टैप वाटर को उबाल के पी रहे हैं तो इट्स नॉट सेफ पंजाब में आप you the water has to go through a process for you to drink it you cannot कोई भी उबाल के आप पानी नहीं पी व्हाट सकते इज दैट प्रोसेस It is a reverse osmosis process. It is different types of filtration, 0.22 micron से 1 micron से 5 micron से गुजर के plus UV light plus ozonation उसके बाद ही पानी पी तो सकते हैं. पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां आप पानी डायरेक्ट सोर्स से पी लें हम spring water. तो पहाड़ों में ग्लेशियर का पानी Spring water को हम तो भी पीते हैं सड़कों पे वो पीते ग्लेशियर का हैं पानी मगर spring water को भी आपको ओजोनेट करना पड़ता है. Really? Yes, of course. बट व्हेन वी गो टू द माउंटेन्स हम तो वहां आम पानी ले अब लेके फिर आपको क्या पता जब पानी जो आ रहा है वो कितना कंटामिनेटेड ऊपर से आ रहा है आपको तो नहीं पता ये. You have to ozonate water no matter what. व्हाट इज दिस This ozonation gas that you have to put in water, it kills the bacteria, 100% of the bacteria. And the problem is you have to keep it in the bottle for about the 19-liter bottle for about 8 hours. और in सब order कर to रहे have हैं it. नहीं कोई नहीं करता. एक सेकंड यू आर सेइंग हाँ। कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज बना रही हैं पानी हाँ। ये लोग ये नहीं कर रहे नहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि जो सारी बड़ी MNCs कंपनियां और कुछ लोकल ब्रांड्स हैं वो कर रहे हैं. अच्छा ऐसी बात नहीं है मगर वो उस प्राइस पे बेच रहे हैं जिस प्राइस पे कोई खरीद ही नहीं सकता मगर कोई लोग हैं कोई कंपनीज हैं तो वो बहुत ही महंगी प्राइस पे बेच रही है विच इज़ अ बिट अनफेयर बट कोई कंपनीज हैं जो थोड़े से कम प्राइस पे बेच रही है मगर वो भी प्राइस नहीं है जो कि एक आवाम आदमी इंसान अफोर्ड कर सकता है जो वाटर वर्ल्ड भी जो बेच रहा है वही सेम एग्जैक्ट पानी जो MNC के जो पानी है द सेम क्वालिटी सेम प्रोसेस जो वो 400 रुपए का बेच रहा है हम 180 का बेच रहे हैं मगर आई टेल यू समथिंग Exact सेम क्वालिटी 100% एग्जैक्ट सेम Wow. क्वालिटी मगर वो 180 रुपए का भी कोई पाकिस्तान में आम आवाम नहीं खरीद सकता है वो हो ही नहीं सकता वो 30 रुपए अब वो 30 रुपए में क्योंकि देखिए खरीदते हैं। सॉरी अगर एक घर में 4 लोग भी हैं हाँ। सबसे छोटी यूनिट चलो हाँ, आप कर लें 4 हाँ, लोग हाँ. कितना पानी यूज करते होंगे 8 वो हफ्ते liters का अब 8 liters a day times 756 liters 56 ओह माय गॉड the 3 bottles अब वो 30 रुपए का एक आदमी खरीद रहा है और वर्ष से 400 रुपए का ले तो हो ही नहीं सकता तो नहीं। मैंने क्या करा आई डिड द लीस्ट पॉसिबल अमाउंट is 180 rupees सो व्हाट अबाउट What's this? प्रॉफिट I mean थोड़ा मेमन आदमी हूँ मैं मतलब I'm थोड़ा making something profit. out there थोड़ा profit obviously I'm not making as much as any of these guys right but the idea is to give clean water across Pakistan that was the first intention अफोर्डेबल क्लीन वाटर affordable clean water मगर अभी भी if you go to places in like Korangi or something यो 30 रुपए का पानी बिक रहा है अब मुझे किसी को कमेंट भी करते हैं हम तो 30 रुपए का पानी 30 ले रहे रुपए हैं का 30 रुपए का 19? 19 लीटर 30 रुपए का
How will you make it accessible for everybody जो 30 रुपए का वही पानी ले रहा है? कैसे कन्विंस करेंगे? नहीं, मैं मेरे पास और भी मैं प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ जिसकी वजह से मैं लोगों के लिए थोड़ा सा और सस्ता कर सकता हूँ, बट वो थोड़ा मुश्किल है उधर तक पहुँचना, मगर मैं पहुँच जाऊँगा क्योंकि नीयत करी हुई है कि पूरे पाकिस्तान को पानी, साफ पानी देना है, तो वहाँ तक पहुँच जाएगा। So this is a part of your philanthropy personality. एक्चुअली वो फिलैंथ्रोपी से ही एक बिजनेस बन गया, ये प्लान नहीं था। हाँ, तो जब मैं स्माइल इंडस्ट्री से भी मैंने एग्जिट करा था तो मेरे पास कोई प्लान नहीं था कि मैं क्या करने वाला हूँ, मगर उस वक्त भी मैं फिलैंथ्रोपी कर रहा था, पानी दे रहा था, तो उसे करते निकल आया। इट वाज जस्ट, और फिर दैट वाज द आइडिया। बट मैंने सोचा कि मैं किस तरीके से पूरे पाकिस्तान को पानी दूंगा। अब मैं कोई हुकूमत भी नहीं हूँ या मैं किसी के पास इतने पैसे नहीं कि सबको फ्री पानी दे। Of course. तो मुझे कमर्शलाइज करके मैंने सस्ते में। हुकूमत भी नहीं हूँ। अच्छा, आपने पॉडकास्ट की थी आमना हैदर सानी के साथ, जिसके नीचे कमेंट मैंने पढ़ा था, because obviously you're a friend of mine and I see what you're doing, जिसके नीचे किसी ने लिखा था कि we want Hamid Ismail for Prime Minister. And what did you think of that? Would you want to go into politics? We have to go on a break. Okay. After the break, we're going to come back to this. Take a break. Welcome back. You're watching Speakeasy. I'm Aisha Umar. This is Hamid Ismail sitting next to me. Before the break, I asked him about this comment under his most recent podcast about becoming the Prime Minister. और of course, क्योंकि मैं जानती हूँ हामिद को, मुझे पता है कि इनमें leadership qualities हैं. Will you be entering politics at any point in your life, do you think? So you see, my first intention is not to enter politics. For me, it is, if there is a way without entering politics, I can help or fix Pakistan, I would do that. And if that's not possible, तो मैं भी ये बात नहीं, आप जवाब को मैं ले जा रहा हूँ पॉलिटिक्स तो के फील्ड में तो आना पड़ेगा ना, टू रन नहीं जरूरी नहीं है। You see, if it's possible to help in policies, and अगर जो मैं पॉलिसी सोच रहा हूँ कर रहा हूँ वो इम्प्लीमेंट हो रहे, तो मुझे जरूरी नहीं है मुझे पॉलिटिक्स में आना, क्योंकि मेरे कोई as such intention नहीं है। मगर अगर ये नहीं होता है, then I would want to come in politics. But your chacha is, your uncle is in politics. Yes. Miftah Saab, who's such a great speaker. Yes. Was he an inspiration for you growing up? I think the only inspiration for me growing up was my father. Yeah. I mean, my father was not in politics, but he was in business politics. And he helped, and the thing is, वो philanthropy भी मैं उनको देख कर ही मैं सीखा, because he really helps people. And your father? My father, right? So वो तो फिर it's basically, I would say, is my father is my. और आपके अब्बू ने कभी नहीं सोचा कि वो political field में आना है? Actually, हम लोग ने पूरी family में किसी ने नहीं सोचा था कि वो politics में आएगा, till Miftah Chacha came into politics. Oh, and how did the family feel about Miftah Chacha in politics? थोड़ा हम डर लगता है थोड़ा, हम लोग वो पॉलिटिकल फैमिली नहीं है, हम लोग बिजनेस फैमिली है। तो मुझे भी अब कभी एक दफ़ा माय फादर ऑल्सो सेड कि तुम कभी पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते हो, तो पता है ना। तो हमारी फैमिली में वो हम लोग नहीं करा, मेरे हम बिजनेस करेंगे। और मुझे किसी लोग भी कहते थे, बिजनेस फैमिली के लोग, कि अगर तुम्हें कभी पॉलिटिक्स मानो तो पॉलिटिक्स पाकिस्तान को हेल्प करना है एक्चुअली, तो तुम सिर्फ फैक्ट्रियाँ लगाओ और तुम फैक्ट्रियाँ लगाओ, लोगों को एम्प्लॉय करते रहो, राइट। ये एक तरीका है। अब ये एक तरीका है टू एक्चुअली, आप एक तरीके से आप पाकिस्तान को हेल्प कर सकते हैं। मगर अगर आपको पाकिस्तान एज अ होल में आपको कुछ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, तो फिर मसला ये है कि पॉलिटिक्स में आना पड़ता है। उसके मसला है ये, मतलब पाकिस्तानी पॉलिटिक्स इज नॉट as easy as a joke. चले, hypothetically speaking for a minute, if we were to imagine you as the Prime Minister of Pakistan, top 3 things, मतलब पहली 3 चीजें जिन पे आप काम करेंगे। देखिए, नंबर 1 इज एजुकेशन। ठीक है, अगर आप अभी जो रीजन से लोग वोट करते हैं अपने MPs को और MNAs को, वो उसकी अगर एक्चुअल वजह पता हो ना लोगों की कि MNA क्या काम करता है, उसको लॉज बनाना है, सिर्फ उसको रोड नहीं बनाना है। वो जो आपके गलियों में रोड बना रहा है MNA, उसका काम ही नहीं है। तो किसका काम है? वो तो आपके मेयर का काम है, आपके गवर्नर का नहीं, गवर्नर का भी नहीं, आपका मेयर का काम है वो। अब लोग क्यों वोट देते हैं कि यार अपने MNA को या MP को, यार उसने रोड अच्छा बना दिया। गवर्नर का क्या काम है? मैं जानना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ। कुछ भी नहीं, कोई काम नहीं है। कोई काम नहीं है। अच्छा, और चीफ मिनिस्टर का क्या काम है? चीफ मिनिस्टर इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द प्रोविंस, या ऑफ द प्रोविंस। आई मीन वो उनका तो। और प्राइम मिनिस्टर का क्या काम है? पूरा मुल्क संभालना है, पूरे मुल्क की पॉलिसीज देखनी है, फॉरेन पॉलिसी देखनी है, इंटीरियर पॉलिसी देखनी है। अच्छा, आप कह रहे थे एजुकेशन हो गई, नेक्स्ट सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अच्छा,
You're saying that if you were prime minister, you would be able to make the street so safe कि अगर मेरा दिल चाहे कि मैं रात के 4 बजे सुबह के 4 बजे सड़क पे अकेली चल रही हूँ तो मैं सेफ फील करूँगी। मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक दिन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि नहीं 50-60 साल नहीं इतने साल नहीं लगते। देखिए, you need to work on two things for this. अगर आपकी बात करें to walk alone, you need to work on education also. आप education पे जब तक आदमियों को भी नहीं सिखाएंगे कि you need to make women feel safe, everybody. and then comes law and order. अब आप देखें कि आप यहाँ जो कराची में है, हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो सिग्नल भी तोड़ देते हैं, वो कोई भी हो, एंड इट डजंट मैटर। हम नहीं तोड़ते, नहीं अपनी बात करें। नहीं मैं भी नहीं तोड़ता, मगर आप देखेंगे जरूर के लोग सिग्नल तोड़े होंगे। दे कुड बी एजुकेटेड पीपल एंड बड़ी बड़ी गाड़ियां भी होंगी और सिग्नल तोड़ेंगे। डीएचए में इत्तेहाद के मेन सिग्नल पे सबसे ज्यादा तोड़ते हैं लोग। अब आप उसी आदमी को बोले दबाई जाए, वो कभी सिग्नल नहीं तोड़ेगा। व्हाट इज इट? इट्स जस्ट लॉ एंड ऑर्डर। वो कोई जाकर वहाँ सीधा नहीं हो जाता कि मुझे अच्छा बनना है। इट्स जस्ट अ फियर ऑफ लॉ। देयर इज नो फियर ऑफ लॉ ओवर हियर। अगर आप फियर ऑफ लॉ यहाँ क्रिएट कर दें तो फिर ये इवेंचुअली लड़कियां अकेले घूम सकेंगी। मैं आपको बताऊं कि वो जो दुबई में भी लोग हैं ना, ये वही लोग हैं जो यहाँ से जाते हैं और फिर भी लड़कियां फील सेफ करती हैं। इट इज जस्ट लॉ एंड ऑर्डर एंड दैट्स इट। अगर हमारे बट ये था एक टाइम पे, मेरी अम्मी कहती हैं जब हम कॉलेज में थे, वो कहती हैं हम तो अकेले हर जगह घूमते थे। So you think it can come back? Of course it can. It requires strict education and law and order, and that's it. It's not that tough. अगर आपने ये कर लिया कि मुझे ये मेरा गोल है तो आप will achieve it. And number 3. Number 3. What would you work on? Number 3, what would I work on? Let's start a rapid fire round. I don't believe in putting pressure on my guests कि जल्दी जवाब दें और एक word सिर्फ बोलें। कुछ में एक ही word बोल सकते हैं, but छोटे answers. हाँ? Are you ready? Let's do it. But then keep thinking about third thing. I will. For Prime Minister. Yeah. Okay. First thing you do in the morning when you wake up? First thing, I actually check my phone. Yeah, I need Okay. Tea or coffee? Coffee. Coffee. One word that defines you, or 3 words that define you? One word is not enough. I would say passionate, ambitious, and ashiq. If you could live a day as someone else in someone else's body with someone else's life, who would it be? For one day? चलिए आप पूरी जिंदगी करें। नहीं, one day ही कर सकूंगा मैं। A father in Korangi, just to feel how it feels. Favorite Pakistani food? Pakistani food, or let's just say biryani, but Karachi की biryani. Karachi की biryani. And favorite food ever? Don't say Kokomo, okay? It should be everyone's biryani. But it's not mine. He knows that. It's not mine. Sorry. I think I would want to eat a beef steak. That would be my favorite. Gosht. Yeah. Gosht. So. Best business advice you ever received? Business हर वक्त जवान होता है. I'll tell you what it means. This is my father's side. So मैं ना जब when I was younger, I'll be like, let's ये business में घुस जाते हैं और ये हमारी opportunity चली जाएगी. वो anxiety के साथ, और आपको तो छोटे होते तो जोश जज्बा अलग होता. तो my father would always say कि business हर वक्त जवान होता है. Today अगर opportunity तुम छोड़ दोगे तो इसका ये मतलब नहीं कल तुम्हें वापस opportunity आएगी. Business हर वक्त जवान होता है. और लड़कियों के लिए जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं फीमेल, बिकॉज आई नो दैट यू वर्क अ लॉट ऑन फीमेल एम्पावरमेंट एज वेल, व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू पाकिस्तानी वुमेन फॉर बिजनेस? ये थोड़ा सा एक मैं कह देता हूँ कि वो ब्रेकिंग द बैरियर्स वाला टाइप होता है ना। जितना मैंने एक बात की थी एक वुमेन एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस में कि I left Smile Industries. I made Smile Global. I'm moving to a house away from my parents and all of that. So this is और ये मुझे उधर तक पहुँचने में मुझे बहुत टाइम लगा था. 1 साल 1.5 साल लग गया था of constantly speaking to my family. So ये अगर ये औरत करना चाहे पाकिस्तान में, एक लड़की करना चाहे, सिंगल लड़की कर, तो उसके लिए नामुमकिन है. तो क्या एडवाइस देंगे? वो करे. क्या करे? वो उसको यही करके वो सक्सेसफुल होगी. वो यूजुअली लड़कियां क्या होती है कि इवेंचुअली पेरेंट्स से डर जाती है और इंटिमिडेट हो जाती हैं, या फिर उनको डर लगता है कि अगर नहीं कर सकूं तो क्या होगा. और जिनके पेरेंट्स ना हो वो क्या करें? I think जिनका कोई सपोर्ट सिस्टम, रिस्क लेने से ना डरे. रिस्क लेने ना डरे. यही तो डर आ जाता है ना हर इंसान के ऊपर कि अगर मैं नहीं कर सका तो क्या होगा. The most exciting time of your life up to now? Phase time. Last 1 year. Last 1 year? Last 1 year. Wow. Yeah. If you could eliminate one thing from the world, what would it be? I would want to avoid hunger and poverty. That's what I would want.
मैं ये नहीं कह रहा कि सबको महल महल मिलने चाहिए, और कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। कोई एक गाना जो आप कभी भी सुन सकते हैं? कौन सा गाना ऐसा होगा जो मैं कभी सुन कोई सकता सिंगर हूँ? चले, कोई ऐसा सिंगर जिसको आप कभी भी सुन सकते हैं? अरिजीत, अरिजीत। आतिफ असलम। अच्छा, if you had a superpower, what would you want it to be? I would want to see every kid growing up in the best way possible. That's what I would want to do. Who is your biggest inspiration in life and why? I would say my Taya, Mr. Mohammed Ismail. You know, yeah. Why? He just, I mean, I just enjoy the way he does business. He manages things, और उनका एक जो बड़ापन है उनका, जो उनका वो, you know, I think that, yeah. Top 3 qualities that make a good leader. I think passionate, risk taker, and obsessive. Right? We're done. Fantastic. Acha. Hamid, I always want my guests to give some advice to, you know, the new generation, क्योंकि अब 65% of Pakistan's population is under 30, under 25 actually. अच्छा, quickly, Gen Z जो अभी है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं कि उनमें वही drive और passion है जो आपकी generation में था? Do you see them taking Pakistan places? I would not compare Gen Z versus millennials. What I would say कि Gen Z की एक अलग approach है दुनिया को लेकर चलने का, और एक millennial की अलग थी. Future is Gen Z's and the next after, right? And Gen Alphas. They are the future. हम लोग को अब उनकी तरफ उनको लेकर चलना पड़ेगा, उनकी तरफ देखना पड़ेगा, वो कैसे सोचते हैं और वो कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, नॉट कि हम लोग अपने आप को उनसे कंपेयर करें। क्या बात है। तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? आपको लगता है उनकी एडवाइस हमें सुनने की जरूरत है? आई थिंक हम लोग को साथ काम करने की जरूरत है, हमको अलग अलग नहीं होना ना। अभी अगर आप देखें सोशल मीडिया पे सब ये कहते हैं कि जेनजी के साथ तो हम काम नहीं कर सकते, और जेनजी इतना अलग है, मिलेनियल ये है, बात तो है अलग है, मगर आई थिंक हमको साथ काम करना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर वही है, हम नहीं है। कैसे ये होगा? आई थिंक थोड़े और बड़े हो जाएं तो शायद जेनजीज और बड़े हो जाएं, तो जब when they come in mainstream हमारे लिए आसान हो जाएगा साथ काम करना। Do you have some, you know, in Ismail Global आपने जेनजी उस जनरेशन के लोगों को एम्प्लॉय किया है? जेनजीज हैं, Ismail Industries में भी जेनजीज हैं, बहुत डिफरेंट अप्रोच होता है। It's very interesting how they do it also, and they're very, you know, laid back. Yeah. But it's not like they're not doing their job. They're just doing the job, but in a different way. We're using AI. I know you're a big fan of artificial intelligence. Mr. Hamid Ismail. Hamid, we're done because the show's time is over, and it's been wonderful speaking to you. I was a little nervous because I know you so well, and I was like, मैं किस तरह कॉन्वर्सेशन को ऐसी एक डायरेक्शन में लेके जाऊं कि मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले, because I want that every conversation that I have with my guests or in life even, you know, I want to be inspired, I want to learn something, and I want my viewers to learn something as well. So I hope this was fun for you. I had a great time, and to be honest, it was just like a conversation like any other day. So yeah, it really was, and I hope you guys had a good time and also found ways to be inspired by our chat. Thank you so much. We'll meet next time. Thank you, Hamid. Thank you, Aisha. Khuda Hafiz.